આજે આપણે મેં મેસેજ મોકલેલો એટલા માટે મોકલેલો કે અત્યારે કોવિડ પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યું છે, એમાં મારો નંબર લાગી ગયો છે, એની વિશે વાત કરીશ. પણ એમાં અમુક વસ્તુ તમે યોગ ક્રિયાની જે હોય છે કે જેના હિસાબે મને થોડો ઘણો ફાયદો થયો છે, એ તમારા લોકો સાથે શેર કરવો હતો કે જેથી મોટામાં મોટી વસ્તુ શું છે કે હોસ્પિટલાઇઝેશન ના થાય, કોઈને પણ કોવિડ પેશન્ટ થાય એનું, અને ઓક્સિજન લેવલ બરાબર રહે. એટલે I see all of you, તમે લોકો મારા ફેમિલી જેવા જ છે. That's how I look at you guys and we are that way. So એટલે એ અમુક લોકો તમને લોકોને ટેકનિક બતાવી હતી મારે, કદાચ ખબર હશે ઘણાને, પણ ના ખબર હોય તો મને જે હેલ્પરૂપ થઈ છે એ તમને લોકોને બતાવી હતી મારે, કે જેથી કરીને તમને ન ફાવતી હોય તો તમે અત્યારથી પ્રેક્ટિસ થોડી ચાલુ કરી દો કે જેથી તમારી જાતને તમે પ્રિપેર કરી શકો. So that was the number one. So I was expecting Ajay Bhai also to be there, and I don't know, Prashant is not there or whatever. So once they come, probably I will go through that. But meanwhile, Rajesh Bhai ne વાત કરતા હતા. Thank you all for your wishes. કે આજે સમ્યક દર્શનની આમ તો ઘણા વખતે સમ્યક દર્શનની જ વાતો કરીએ છીએ આપણે. લાસ્ટ 2 સેશનમાં આપણે હજી સિરીઝ જેવું ચાલુ કર્યું છે સમ્યક દર્શનનું, કેમ કે દરેક જણા જો સાંખ્ય દર્શનમાં એને અવિદ્યાનો નાશ કહે છે, પ્રજ્ઞાવંત પુરુષ એટલે સમ્યકદર્શી પુરુષ કહે છે, એવું કહી શકાય એમ. અને નિર્ગ્રંથ દર્શનમાં અને સમ્યકત્વી જીવ કહે છે, અને મિથ્યાત્વનો નાશ કહે છે. એટલે મિથ્યાત્વ કહો કે અવિદ્યા કહો, એકની એક વસ્તુ છે. જેને હિન્દુના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે છે એના માટે અવિદ્યા છે, અને જૈનના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે છે એના માટે મિથ્યાત્વ છે. બેનો નાશ કઈ રીતના કરવો. તો હવે મારાથી બહુ બોલાશે નહીં, એટલે થોડું ઘણું लेक्चर आपको ना, તમે લોકો थोड़ी बात करो અને आप लोग ही बात करें, और आप लोग जो बात करेंगे उसमें से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं थोड़ा बहुत उसको ठीक ठाक कर दूंगा. आंटी ने बताया कि ये क्यों नहीं होता है, तो उसका मतलब एक ही होता है कि नहीं होने का, कि एग्जैक्टनेस अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है हमारी समझ में, और हम किसी एक साधन पे जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं. एक एस्पेक्ट पे पूरा बैठ जाते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को देखते नहीं है. और सम्यकदर्शी को देखा नहीं है हमने, क्या है, ज्यादातर सम्यक दर्शन वाले व्यक्ति को देखा नहीं है. नहीं, उनको नहीं देखने से ये नहीं आ रहा है. तो ये स्वाध्याय सत्संग की जो सीरीज चल रही है उससे आप खुद ही सम्यकदर्शी हो जाओगे. शुरुआत तो हो ही जाएगी, और काफी लोगों की शुरुआत यहाँ पे हो भी चुकी है. शायद उनको भी मालूम नहीं है कि ये मेरी शुरुआत हो चुकी है. और लेकिन मैं तो सबको कहता कि कुछ सम्यकदर्शी नहीं हुए है और सम्यकदर्शन नहीं हुआ है, ताकि उत्साह बने रहे, ताकि उसके प्रति उत्साह तो नहीं कहता कि उसके प्रति एक फोर्स बना रहे. तो ये फोर्स बना रहे वो जरूरी है. कोई देखो, तो ये सीरीज में हम बात आगे करेंगे तो काफी सारी चीजें उजागर होगी जो आप सभी को काम लगेगी, और मेरा भी स्वाध्याय होता रहेगा साथ साथ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों का फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है. अभी मुझे फिजिकली तो मैं ड्रेन आउट हो जाऊंगा आज, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोगों से बात करके, स्वाध्याय की बात करके मुझे खुद को बहुत ही अच्छा लगेगा.
फिजिकली ड्रेन आउट हो जाऊंगा तो मैं तो सो जाऊंगा, तो क्या बात है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप one by one, if you can start that. Let me see if Ajay wants to come. So if all of you guys, once all of you guys are there, maybe I will just show you that yogic technique. Because most of you guys know that I come from the background of yoga. I come from that, when I was younger, that's how I started. And, I have learned a lot in that aspect. And then eventually, somehow I ended up with the Nirgans Darshan. And now I ended up with the Sankhya Nirgans, both Darshan as well. But most of my terminologies are that way. So Rajesh bhai, I will just let you guys talk, and I will just listen today, maybe with the exception of a little bit here and there. आपका जवाब मिल गया ना कि हमने सम्यक को देखा नहीं है, इसलिए सम्यक को देखा होता, क्योंकि वो मिलने बहुत ही दुर्लभ होते हैं और उसकी पहचान नहीं होती है हमें। दैट इज ओके, क्योंकि वो हम जहाँ पे हम पहचान कैसे करते हैं कि जो पॉपुलर है उससे हमें पहचान होती है। क्या करते हैं हम, जो ज्यादा पॉपुलर है वो हम समझते हैं कि ये यहाँ पे सत्य होगा, यहाँ पे सम्यकत्व होगा। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, कोई अच्छा वक्ता है तो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा चलता रहता है। ठीक है, I will leave it to you guys now. You guys can take turn. Maybe everybody can say something for 5-10 minutes. उन्होंने जो भी सार को ग्रहण किया है पहले 2 सेशन में से, सीरीज 1 और सीरीज 2, आप लोगों ने शायद फिर से देखा नहीं होगा, मुझे मालूम है, लेकिन नहीं देखा तो इसके बाद you will be compelled to go back and see that. क्योंकि जब हम बात करते हैं तो you need to also see कि how ये वाक्य रचना कैसे होती है, उसको भी आप देखते रहो। एक दफा सुनोगे तो शायद आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे, ऐसा हो सकता है, समझ रहे ना। कोई मेरे भाई साहब कहते हैं कि आप जो शब्द का उपयोग करते हैं उसको समझने में चित्त चला जाता है तो बात क्या होती है वो छूट जाती है, तो ऐसा हो सकता है। Okay, Rajesh, you can take it forward. I'll be here, but I'll just listen to you guys. You're on mute, Rajesh. Yeah, Rajesh bhai, you need to be on unmute. जैसे धीमन भाई ने बताया, हमारी जो समझ है सम्यक दर्शन के बारे में, हम सब लोग एक एक बारी हमारी जो भी समझ है, जैसे हम यहाँ पे बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी खुद की क्लैरिटी आएगी हमारे विचारों के बारे में, और हमारे विचारों में उसको परफेक्टनेस लाने में जो भी कमियां हैं वो धीमन भाई पूरेंगे, तो वो जो भी पूरेंगे वो हमको लंबे समय तक याद रहेगा और वो हमको मार्गदर्शन बन जाएगा। हर लोग अपनी अपनी समझ के बारे में बताएंगे, ऐसे हम शुरू करते हैं। कौन पहले जाएगा? सम्यक दर्शन के बारे में। हाँ जी, रमेश भाई। I'll go first. So thank you for clearing that Samyak Darshan's meaning.
આજની વાત કરું છું. This is accumulation of whatever જે મને સમજ મળી છે તે પ્રમાણે આજે મારે માટે સમ્યક દર્શન શું છે તે easy for me to implement or understand કે શું સમ્યક દર્શન નથી. એટલે I have decided કે હું મારા મન જેમ ચાલે તેમ નથી કરવાનો, બુદ્ધિ જેમ દેખાડે તેમ નથી કરવાનો, અને બીજાનું સાંભળીને ઓર જે બાજુ સંજોગો લઈ જાય છે તેને એક્સેપ્ટ કરીને whether I like it or don't like, અંદર તો બધું ચાલ્યા કરે, પણ I have decided not to listen to my intellect, which is buddhi ne whatever, man or ichha, મને આવું જ જોઈએ તેવું જ જોઈએ, nothing as my practice. And ઘણું વસ્તુ થઈ પણ ગયું છે, વર્તી રહ્યું છે. મારે હાર્ડ ટ્રાય પણ નથી કરવો પડતો કે ભાઈ ના આવું તો નહીં જ એવું, એટલે બહુ મારે પ્રેશર નથી આપવું પડતું મને. સમ્યક દર્શન શું છે તે બધું ડેસ્ટન છે. જે થાય છે મારી આંખની સામે, મારા મનમાં, મારી બુદ્ધિમાં જે થાય છે તે બધું પ્રી રેકોર્ડેડ છે. ને એ પ્રી રેકોર્ડ ક્યારે થયેલું? જ્યારે મારી અણસમજણ હતી, મારી બુદ્ધિને ઇન્ટેલેક્ટ થી ચાલતો હતો ત્યારે બધું રેકોર્ડ થયેલું. એટલે એ જ રીતે પાછું નીકળે છે. બુદ્ધિને ઇન્ટેલેક્ટ થી રેકોર્ડ થયેલું ને બુદ્ધિને ઇન્ટેલેક્ટ થી પાછું નીકળે છે. એ જ સેમ થિંગ that I recorded. So that's why I have decided કે મારે આનું સાંભળવું નથી. જે થાય છે તેને એક્સેપ્ટ કરી ને આગળ વધવું છે ને એ રીતે જીવવું છે. And it's been blissful for me living that way. Whenever I don't, it always take me in a spin. Always. Not once, always. I don't use the word always too much, but in this case, I'm going to use always because it always gives me emotional problems. I'm not thinking clearly. શું થશે? All certain fears kicks in whenever I move away from that samyak darshan. Samyak darshan, as I said, the biggest thing, the shortest way I can explain that is all these things that are happening within me are pre-recorded, and without me, outside also, it's all pre-recorded. And I am trying to fix and adjust in my way, and I'm losing the whole benefit of life in doing that. So that's my gist of it. That's it. Jai Satchidanand. Okay. So अभी और कौन बताएगा? प्रशांत और उज्जवल, you want to like to go first? Yeah. So सम्यक दर्शन मतलब कि अपने आप को जैसे है हम अपना वैसा अस्तित्व समझना, अपने आप को ये नहीं मानना कि मैं ये बॉडी हूँ, और थिंक अबाउट मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, उस बिलीफ को पक्का करना. और उस बिलीफ को पक्का करने के लिए जो भी हमको अपनी बिलीफ्स बनानी पड़ती है, लाइक जो कुछ छोड़ना पड़े, उसकी समझ को पक्का करना इज लाइक सम्यक दर्शन. जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चीज़ें छोड़ो, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, इस बिलीफ को और पक्का करने के लिए अपने अंदर जो भी निरंतर हमको प्रोग्रेस करनी है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना.
in my opinion, that is Samyak Darshan. हाँ, तो बहुत अच्छी बात कही आपने प्रशांत, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन सबके लिए दे दूं। क्रोध मान माया लोग जो बता रहे हैं कि वो कम करना, वो 4 तीव्रता से होते हैं। तो पहली तीव्रता जब चली जाती है, तीव्रतम जो होते हैं ना, वो चला जाता है, जिसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय। मतलब ऐसा कर्म पड़ता है कि आपके अनंत जन्म एक क्रोधमान माया लोग की इंसिडेंट से बन जाते हैं। वो जब चले जाते हैं तब सम्यक दर्शन होता है। और फिर तीन जो कम तीव्रता वाले होते हैं, वो सारे चारित्र में आ जाता है। मतलब उसको हटाने नहीं होता है उसमें, वो चारित्र में हटाना होता है। तो आपने जो पहला बताया ना कि वो बिल्कुल ठीक है कि मैं कौन हूं, और जो चीज जैसी है ऐसी दिखाई दे, उसी को सम्यक दर्शन बोलेंगे। यू कैन सी थिंग्स एज दे आर, वो सम्यक दर्शन है। तो क्रोधमान माया लोग जो तीव्रतम होते हैं वो तो जाएंगे तभी ये होगा, दैट उसके लिए ठीक है। लेकिन उसके पश्चात नहीं है, तो फिर आपने उसके पश्चात किसी को हटाना नहीं होता है। क्रोधमान माया लोग को वो दर्शन में नहीं आते, सम्यकत्व में नहीं आते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसका वो पुरुषार्थ होगा, उस पुरुषार्थ में वो लग जाएगा, वो सम्यकत्व जरूर लगेगा, लेकिन वो नहीं होने के पश्चात भी सम्यक दर्शन माना जाएगा। तो ये बात हमने पहला ये बताया, दूसरी बात ये बताई, और तीसरा क्या बताया आपने प्रशांत? उस अप, उस अपना प्रोसेस, अस्तित्व को पहचान। अस्तित्व का बात हो गई। दूसरा क्रोध मन वालों को हटाना, और तीसरा कुछ बताया था। एक उस प्रोसेस में लग जाना, हाँ, जो भी उसको हाँ, बिलीफ तो को उसको पक्का करे, उस हाँ, प्रोसेस में हाँ, लग जाना। बिलीफ और बिलीफ डालना नहीं है, सिर्फ गलत बिलीफ को निकालना है, समझे? और बिलीफ डालोगे तो आप दूसरा मैं लगेगा, मैं शुद्धात्मा हूं, ये बिलीफ नहीं है, वो सत्य है। हम उसको बिलीफ मानेंगे तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस बन जाएगी, और हमें साइकोलॉजिकल इश्यू होगा। तो उसको बिलीफ ना समझे, ये सिर्फ वो जो गलत मान्यता है, गलत बिलीफ है, उसको निकालना, यही है, और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। So, who would like to go next? Ujjwal? I can go. Well, last week though, unfortunately मैं join नहीं कर सका. I didn't had a chance to look at the video also, but after so many years of work, being with Diman bhai, so the way I see it, I think Namish bhai and Prashant ने summarize किया है, plus Diman ji ने भी clarify किया है. So it's all about know yourself. और I think there was एक जो बीच में टॉपिक भी हो गया था कि कहाँ से शुरू करना है, कि डोंट सी दैट आप क्या हो, आप क्या नहीं हो, वहां से शुरू करना है, राइट? एंड फॉर मी आई थिंक देयर वाज, जो उसके पहले का सेशन हुआ था व्हिच वाज कनेक्टेड टू दी पूरे अपने कर्मों के हिसाब से, जो कर्म थ्योरी है। मैं अपने आप को आई कैन नॉट डिस्कनेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द पुद्गल, बट पुद्गल का जो पूरे मेमोरीज मेरे बॉडी में बैठे हैं, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस इट। बट देन उस पूरे प्रोसेस में मैं क्या नहीं हूँ का वो धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस इट एंड मोर गो टूवर्ड्स जो अपना मेन ग्रुप का भी है वितरागता,
जो मेरे में जो राग भरे हुए हैं उसको मैं विथ कैसे करूं, you know. So but going towards more of, you know, this is who I am, you know, मेरा अस्तित्व क्या है, जो अभी you know दिमंजय ने बताया अभी. So हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो आप कहते हैं ना कि जो नहीं है, क्या हूँ या क्या नहीं हूँ, उसको बोलते हैं भेद विज्ञान बोलते हैं कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, उन दोनों में एक किस्म से भेद करना, उसी को बोलेंगे भेद विज्ञान। तो आप जो कर रहे हो, क्योंकि आप जो हो वो एक अभी परसेप्शन का विषय नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि परसेप्शन इतनी हद तक नहीं गया है। और नहीं, मैंने भी एक बताया कि हमें अभ्यस्तता किसकी है कि 5 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसी को देखने की अभ्यस्तता है। मन से जो ज्ञान होता है उसी को देखने की अभ्यस्तता है। तो उनसे ये जो टेंडेंसी है हमारी, उसको पहले मिटाना पड़ेगा। और उसके लिए ये जो हमारी जो आउटलुक है ना कि चलो ये हूँ, मतलब दूसरा है कि हम क्रिया को देखते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं वो मैंने धर्म किया ऐसा समझते हैं। लेकिन क्रिया, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि भावे भावना कीजिए और भावे केवल ज्ञान, भावे दीजिए दान, ऐसा भी बोलते हैं। तो एक और हम भाव की बात करते हैं, और वो भावना को गाने की क्रिया को हम वो साधन समझ लेते हैं। नहीं, भावना जो उनको सुनना भी पड़ेगा ना, भगवान को सुनना भी पड़ेगा। हम सुनाते हैं उनको, लेकिन उनको भी सुनना पड़ेगा। तो उनको सुनना जो होता है वो स्वाध्याय होता है, समझ रहे? भगवान को जो सुनना होता है, भगवान की वाणी को सुनना होता है वो, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, मतलब परिवर्तन करना होता है। क्रिया करने से एक वातावरण उत्पन्न होता है परिवर्तन के लिए, लेकिन उससे परिवर्तित हो ये जरूरी नहीं है। पत्थर के ऊपर से पानी पसार हो जाए ऐसा भी हो सकता है। तो हमें तो जैसी हमारा दर्द है, जैसा हमारा रोग है, उस किस्म की हमें उसमें दवाई लगानी होती है। समझिए आप लोग? बहुत बढ़िया बताया आपने भी। ठीक है, और कौन जाएगा? तो अरविंद भाई पूछा बेन હા, કુસુમભાઈ એમાં મેઇન વસ્તુ એ છે કે સાચી વસ્તુ ઉપર પહેલા પ્રથમ તો આપણને શ્રદ્ધા થવી જોઈએ અને ફાઇન્ડ આઉટ કરવું જોઈએ કે કઈ વસ્તુ સાચી આમાં છે, અને એની ઉપર પછી શ્રદ્ધા રાખી અને ત્યારબાદ એનું અનુકરણ કરવું જોઈએ. આ જે મન છે એની અંદર મુખ્ય આમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. મન કંટ્રોલ કરવામાં કોઈ પણ વસ્તુ થાય તો એમાં પહેલી સમજણ તો એ હોવી જોઈએ કે શરીર અને આત્મા બંને અલગ છે, અને જે કંઈ વસ્તુ આપણે વિચાર કરીએ છીએ અત્યારે એ શરીર માટે વધારે વિચાર કરીએ છીએ. આત્માને આપણે જોયો નથી, એથી આપણે સમજવા માટે એને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્મા દેખાવાનો નથી, પણ એને સમજવાથી એનો પરિચય આપણને એ રીતે મળી શકે છે. તો એ રીતે પ્રયત્ન દરેક વસ્તુનો થવો જોઈએ, અને જે રીતે 18 પાપસ્થાનકો છે એમનો વિચાર કરવો જોઈએ, 9 તત્વોનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ, અને 8 કરવું, એ બધી વસ્તુને ધીરે ધીરે આપણે સમજતા શીખીએ તો મને લાગે છે કે આની અંદર આપણે થોડા આગળ વધી શકીએ. અને એમાં કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણને સમજણ ન પડતી હોય તો જ્ઞાની ભગવંત હોય એમની પાસેથી આપણે સલાહ લેવી જોઈએ, અથવા એમના જે લખેલા પુસ્તકો છે એ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ કે જેથી આપણી સમજણ શક્તિ વધી શકે. अजय भाई, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। सॉरी, मैं जरा लेट ज्वाइन किया। हाँ, अभी हम जा रहे हैं, वी आर ऑल गोइंग ऑन द साइड के क्या हमने जो सम्यक दर्शन की जो समझ है हमारी, उसको हम शेयर कर रहे हैं आपस में सब लोग। तो
ये इन लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे बहुत बोलना नहीं है आज, बिकॉज ऑफ माई कंडीशन। वैसा तो मैं चुप नहीं रहता हूँ, लेकिन आज मुझे चुप करवा दिया है। चुप करवा दिया गया है मुझे आज। तो इस हिसाब से ये आप भी कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन जो है वो क्या है। ये नमिश भाई ने बता दिया, प्रशांत ने बता दिया, उज्जवल ने बता दिया, बहुत अच्छा बताया। और हमारे जो अरविंद भाई साहब है, उन्होंने भी अभी शेयर किया है, अच्छी बात की है उन्होंने भी, बहुत अच्छा। Okay, I understand. See, मेरी जो समझ हो रही है उसके हिसाब से certain things, सहज जो शब्द है कि like तप करना या हो जाना, भगवान का ध्यान करना या हो जाना, it is dependent on your state, कि भगवान पे श्रद्धा आनी या श्रद्धा लानी, those are two different things. When you are forcing to do certain things, that means that you have not achieved the basic requirement. You are forcing something. It is आप probably जो basic चीज achieve नहीं हुआ तो बाकी का आप अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं फोर्स करके। बट if you achieve the basic thing which you can understand, which you can figure out only by having knowledge, thinking, deep thinking, हर एक पर्सन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, it is not dependent, it is independent of others. You cannot achieve certain basic understanding with the help of others. They can help you in gaining the understanding, but you have to do it yourself. Everybody has to do it by themselves, and that leads to the other things like तप होना या करना या हो जाना। हो जाता है जब when you get the basic understanding, तब हो जाता है, या फिर भगवान को याद हो अपने आप हो जाता है सहजता से। I was trying to discuss some with somebody के पूर्व जन्म, के when you really want to understand के मेरे साथ में ये मैं क्या खराब कर रहा हूँ, what I understand, there is nothing wrong with any other dharma. मुसलमान धर्म कहो या क्रिश्चियन धर्म कहो या जैन धर्म कहो, सब में अचीवमेंट है। बट if you just to give you the details is कि आप ये जन्म में शायद जैन है, दूसरे जन्म में आप मुसलमान हो सकते हैं, तीसरे जन्म में क्रिश्चियन हो सकते हैं। तो the requirement is to have a basic understanding. All dharma leads to something. If you get a basic understanding, which is above and beyond any dharma, the basic understanding. So if you forget about the dharma, but if you understand जो भगवान का या जिनको आप मॉडल मानते हो, उनसे मॉडल से you can talk, you can get the knowledge, they can give you the knowledge. It is not like they are gone, they are always there. It is in air, it is in it is in nature. Nature can give you what you're looking for, but you have to really concentrate कि भाई ओ मुझे पहले के जन्म में मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी जिससे मैं ये मुझे हो रहा है, that I want to understand. When you keep on going in that direction, keep on concentrating, you'll get it. So that is my 2 cents. Yeah. टू सेंट में कोई करेक्ट करना है मुझे या
पास करना है, क्या करूं अजय भाई? Yeah, please correct it. ओके, तो मुझे ये मुझसे 2 छोटे हैं, उनका तो मैंने करेक्ट कर लिया है, लेकिन जो मुझसे जो बड़े हैं उनको तो मुझे थोड़ा संकोच भी होता है ना, फिर तो पूछ लेता हूँ। तो आपकी बात सही है। आई थिंक यू एंड आई टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस अलग सब्जेक्ट, अलग 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 ये धर्म की बात कर रहे हैं। तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन सिंपल थिंग कि ये जैन फेथ नहीं है, क्या समझ रहे हो? जैन फेथ नहीं है, जैनिज्म हिंदू धर्म फेथ नहीं है, लेकिन इसमें फेथ का एलिमेंट दिया गया है। हम जो श्रद्धा कहते हैं, सम्यक श्रद्धा, वो दरअसल फेथ नहीं है। फेथ जो होता है, क्रिश्चियन में फेथ होता है, मुसलमान में फेथ होता है, ये जो अब्राहमिक रिलीजन जो हम बोलते हैं ना, उन्होंने फेथ होता है। और फेथ जो होता है वो प्राकृत गुण है, मतलब बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, ऐसा गुण है। ठीक है, तो वो गलत नहीं है वो लोग। हमने भी देखा है कि हमारे हिंदू धर्म, मैं हिंदू बोलता हूं तो उसमें जैनिज्म आ जाता है, ऐसा समझो, क्योंकि वो आर्य धर्म समझ लो, ऐसा है, आर्य समझ लो, ये हिंदू समझ लो। हिंदू तो जियोलॉजिकल प्लेस है ना, वैसे हिंदुस्तान। तो आर्य धर्म जो है उसमें क्या होता है कि वो रिसर्च बेस है, ढूंढो सत्य को, ढूंढो। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जब निकले थे तो ढूंढने के लिए निकले थे, ठीक है ना? वो उन सत्य को ढूंढते थे। वो हमें भी ढूंढना है। ढूंढना ऐसे होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है और उसका रीडिंग मिलता है। ये जो प्रशांत ने बताया ना कि हम बात करते हैं कि पूरा जीवन एक्सपेरिमेंट में लगाओ, तो ये पहला तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा, आपकी बात कहने का मतलब समझ, लेकिन ये जो ढूंढने की जो क्रिया होती है विचार से नहीं होती है, विचार से बहुत लिमिटेड होती है, परसेप्शन से होती है। किससे होती है? परसीव, मतलब कि देखना, उससे क्लैरिटी आती है, और वो उससे जो रीडिंग आती है उसको ऊपर फेथ नहीं रखना होता है। विचार, विचार क्या होता है कि विचार मतलब कि मन जो होता है या बुद्धि, जो भी एक ब्लाइंडेड कवरिंग से होता है, तो एकांतिक बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? एकांगी, मतलब एक ही अंग को उजागर करने वाला होता है। और वो अगर सम्यक दर्शन नहीं होता है तो वो भी गलत तरीके से उजागर करता है। तो हमारा जो धर्म की जो प्रोसेस बताई गई है हमें, वो अपनी जो परसेप्शन होती है, मतलब अपनी जो देखने की क्षमता होती है, ज्ञान दर्शन करने की क्षमता आती है, उसको बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो ये जो सम्यक दर्शन जो होता है, उससे क्या होता है कि हम स्पष्टता से चीजों को देख सके। तो फिर ढूंढना होता है, तो फिर जो मिलती है चीजें, हम हमेशा कहते हैं कि बोध की सत्यता पे जाओ। बोध कितना हो रहा है वो महत्व नहीं है, लेकिन बोध की जाति क्या है। जाति मतलब ये सत्य से हो रहा है या फिर वो कुछ न कुछ अज्ञानता से हो रहा है। अज्ञानता मतलब कुछ न कुछ भ्रमित इल्यूजन के साथ हो रहा है। तो इल्यूजन से, इल्यूजन को नाश करना सारे के सारे, उसी को मिथ्यात्व का नाश बोलेंगे। मिथ्यात्व कहो या इल्यूजन कहो, भ्रांति कहो, एक ही चीज है, समझे? तो विचार से भ्रांति हो सकती है, लॉजिक से भ्रांति हो सकती है,
या बुद्धि से भ्रांति हो सकती है, ये सब भ्रांति के अंतर्गत आ जाने वाले साधन है। मैं कभी कभार आप लोगों से लॉजिक की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि आप जो लोग जिससे बात करता हूं, जो थोड़ी बहुत सम्यकत्व आ जाता है इस सत्संग के दायरे में रहते हुए, कई भ्रांतियां अपने आप निकल जाती है। तो जो बुद्धि और कुछ नहीं है, वो सम्यकत्व को प्राप्त करना शुरू कर देती है। तो उसका जो संसार व्यवहार होता है वो भी ठीक से शुरू होना हो जाता है। तो आई थिंक does that make sense, Ajay bhai? Does it clarify anything for you or anything? Because I know that you and I talk a lot about like issues like this. So please give me, your feedback. It is very well possible that I'm wrong too. Devan bhai, यानी what I understand what you are saying is कि जो मेरा जो बताना है, it is like probably there might be a error in what I'm thinking, because I'm not following the standard way which is laid down. No, that's not what it is. I'm not saying that. No, I'm not saying that at all. सब देखो, जो भी मोक्ष मार्ग में जाना होता है वो एसेंट्रिक ही होता है। आप लोगों में से सबसे ज्यादा कोई किसी की, हम बोलते हैं ना कि हिंदी में बोलते हैं कि खोपड़ी सर फिरा जो कोई होगा तो मैं ही होगा। मैं आपको बता दूं, अब आप लोगों को अभी दिखता नहीं है, लेकिन मेरे विचार को जाके देखोगे, मैंने देखा है ना अपने विचारों को। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्या लोग बोलोगे कि यार तुम्हें बैठ नहीं सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, फिर वापस इसमें क्यों चले गए, आपको ये होगा वो होगा। लेकिन मेरा सिर ऐसा ही होता है कि दैट्स हाउ इट इज। तो ये स्टैंडर्ड से हटके ही होगा। हमने पहले भी बताया कि जो उसको मोक्ष जाना है वो संसार, मतलब ये पूरा का पूरा जो प्रवाह जो चल रहा है, जो संसार की ओर चल रहा है, उससे विपरीत दिशा में चले जाओ तो मोक्ष मिल जाएगा आपको। मैंने पहले बता दिया। I'm trying to reach to that point कि भाई जब नेचुरल हो जाए कि भाई क्रोध आया ही नहीं। देखो, मैंने पहले बताया कि जो शास्त्र में दिया गया है वो माइलस्टोन है। क्या है कि ऐसा होना है, ऐसा होना है। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी जर्नी हो रही है तो आप अपने अंदर जो क्रिया हो रही है उसको आप इससे मैच कर सकते हो। धर्म का जो उपदेश है उससे मैच करना है। आपको क्या करना है कि अभी देखो, क्रोध को, शास्त्र को छोड़ दो साइड में, चलो किसी भी सर्वज्ञ की वाणी को भी छोड़ दो। हम हर जीव एक चीज समझता है या फिर, और उसके विरुद्ध और ये दोनों एक सेट को समझता है, दुख और सुख का। क्रोध आना सुखी है या नहीं है, सुख है या दुख है, कोई पूछेगा। क्रोध खुद को जलाता है या नहीं जलाता है, तो हमें मालूम होगा। हम सामान्य तरह से लोगों का ये अनुभव होगा, मेरा तो है, लोग और लोगों के तो मालूम नहीं है कि क्रोध आने से दुख होता है। क्रोध अच्छा है बुरा है वो तो एक परिप्रेक्ष्य से देखने की बात है। आपकी बात आई कैन अंडरस्टैंड। तो अगर मुझे दुख होता है तो दुख का मुझे उपाय करना है, इतना ही है करना। लेकिन आपको ये भी, किसी को ये भी मालूम ना हो कि दुख क्या है और सुख क्या है, तो एक किस्म की मूढ़ता मानी जाएगी, है ना। तो इस मूढ़ता को तो पहले हमें ऊपर उठना है, इस मूढ़ता से ऊपर उठना होगा। क्योंकि हम काफी लोग ऐसा कहते हैं कि ये क्रोध करने से सामने वाला कंट्रोल में रहता है, ठीक है ना। लोग तो घर में भी ले आते हैं, काफी लोग घर में भी ले आते हैं, हस्बैंड या वाइफ या बच्चों को अपनी तरह चलाने के लिए क्रोध का इस्तेमाल करते हैं लोग, काफी लोग करते हैं। क्योंकि इंसिस्टेंस होता है ना कि
मैं जैसा हूं, मैं जैसे चलता हूं ऐसा ही सब और सबको चलना होता है। तो उस वजह से इसका क्रोध का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको और चीजें मालूम नहीं है। तो एक मूढ़ता की अवस्था होती है कि जिसमें मालूम ही नहीं होता कि ये दुख हुआ है नहीं हुआ है। लोग का, जस्ट अ मिनट, काफी चीजें ऐसी हो जाती है, काफी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि हमें, मैं अगर करता हूं तो मुझे मेरी मूढ़ता दर्शाती है। तो उन एक्टिविटी से कम मैं दूर हूं, क्योंकि मैं तो चेतन हूं। चेतन हूं मतलब संवेदना, मुझे मुझे संवेदना है, और संवेदना में से ही सुख आएगा। वरना मैं जीवंत हूं या डेड बॉडी हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे ना? हम ये आत्मा की भी बात नहीं करते हैं अभी, हम तो सिर्फ कॉमन व्यक्ति समझ सके इस तरह से बात करते हैं। और संवेदना तो हम जानते हैं सभी लोग। जो संवेदना में दुख आता है वो हमें मुझे दुख देता है। और जिसको दुख से दूर जाना है, इसके लिए ये मार्ग है। जिसको दुख अच्छा लगता है उसके लिए कोई, वो ज्यादातर इन दुखों को ही सुख मान के ये लोग फिरते हैं ना। ज्यादातर लोग जो फिरते हैं, ये अब ये आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? आपको एक इसमें दुख है, कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लगा है, इसलिए आप आए हो। आप सबको सुख की तलाश है, सुख की शोध है, सुख को पाना है, इस वजह से आप लोग आए हो। एक भाई ये मालूम भी हो गया कि दुख दूर हो सकता है, इसलिए आप लोग बात कर रहे हैं ना, और तो कुछ है नहीं। तो अपनी संवेदना में से वो दुख, पहले दुख की इफेक्ट कैसे कम करें, नंबर 1। नंबर 2 है कि आगे आना है उसे कैसे रोके, मतलब वो न आए ऐसा करें। रोके मतलब ये भाषा की बात है, वो कैसे न आए दुख, उसका उसके लिए जो यथा योग्य है वो हो। बात आपकी सही है कि सहजता से ही होना चाहिए, लेकिन सहजता कब आएगी? आपका जो दुख का फोर्स बहुत ही असहज करता रहता है लोगों को। जब तक आप दुख के फोर्स के सामने असहज होते हो तो सहजता की बात ही कैसे कर सकते हैं हम? जैसे दुख आता है जीवन में, किसी को असहज भी हुआ है, वो भी एक दुख है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो असहज हुआ है, मैं बताता हूं कि धर्म का मार्ग सुख का मार्ग है। इसमें से कराज के कुछ नहीं करना, कराज मतलब समझ रहे, बहुत फोर्सफुली कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि वो फिर दुख का मार्ग हो जाता है। तो दुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, दुख सुख के मार्ग, दुख से प्रसार नहीं होता है, दुख के रास्ते प्रसार नहीं होता है। दुख को कम करता जाए, अपने पीछे छोड़ता जाए, ऐसा ही मार्ग सुख का हो सकता है। ये आपकी बात, दैट्स फाइन। Have I missed any point, अजय भाई? नहीं नहीं, this fine. Yeah, I think we have to go in a lot of discussion. आप जब free होंगे, I don't want to take everybody's time, so we'll take it up separately. Yeah, नहीं, I mean, yeah. मुझे लगता है कि सभी को बेनिफिट हो रहा है इन चीजों को बाहर आने से। आप बोल रहे हैं, दूसरे शायद सप्रेशन में पड़ी है ये सारी चीजें। कुसुम आंटी, आपका ये जो पूरा मुंह देखा है, ऐसा करें ना प्लीज। and Ajay, can you turn your phone 90 degrees, जैसे so your, हाँ, that's it, thank Okay. you. Oh, okay. Okay. तो सब ब्लैक स्क्रीन कम से कम आया है। Oh. तो ये जो सारे डाउट होते हैं ना भैया, यही सम्यकत्व की खामी है। और डाउट जो क्यों होते हैं कि परसेप्शन कभी कुछ
स्टिल रीचिंग, समझे ना, इट्स रीचिंग परसेप्शन, मतलब वो सम्यक्त्व इज रीचिंग, मतलब इज रीचिंग फॉर इट। थोड़ा पन, आपने क्या ना पनो टूको पड़ा है थोड़ा, इसलिए डाउट हाँ रह जाता है। ये जो डाउट, सी राइट अब बोलो, राइट ये डाउट सी जो है ना, हाँ हाँ बिना डाउट का जो समझ होना और बिना डिसीजन का भी समझ होना, समझ रहे, डिसीजन आता है तो उसमें मनोशक्ति, विल पावर आ जाता है, और बिना डिसीजन का होता है वो आत्म पावर, आत्मबल होता है। तो अगर क्षमता हो गई है तो डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं हुई है अभी तक। तो एक मनोबल ही एकमात्र साधन है। जब तक मिथ्यात्व प्रवर्तमान है तब आपके पास एक ही साधन है, वो साधन क्या है? मनोबल आपका। तो उसमें से डिसीजन लेना होता ही होता है, और वो प्राकृत के पक्ष में आता है, लेकिन अपनी शुद्धता की ओर ले जाता है। यू आर सेइंग समथिंग, आई एम सॉरी। या आई मीन मेरा कहने का ऐसा है कि हर एक धर्म में आइदर क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, यू नो, दे ऑल बिलीव कि उनका धर्म सही है। हम लोग जैन करके हम कहते कि हमारा धर्म सही है। एंड अनलेस you know that can be verified only with a person who has reached to the highest level, right? I mean the person who can see or who can do the magic which we don't think it is possible. तो वो जब मैजिक वो कहते हैं ना कि उनको ही नमन किया जाता है जो who has reached to so considering that, right? So the other way around is to believe कि भाई ये जो धर्म है, जो भी धर्म है, they are just guidelines. There is nothing wrong. I mean, believing that Musalman is wrong, it is totally a wrong thinking. I believe that Musalman may be they are good, Christians are good, because they come and they kind of you know, ask people ke bhai, okay, listen to us, you know, we can take you to the highest level. I feel like there's nothing wrong with any of the dharma. The thing is ke mujhe each individual person is at a different level, different stage, and unless I understand myself and I correct myself where I am required to correct myself, I correct myself, nothing is going to help. And that is where I stand. I'm trying to understand myself, I'm trying to correct myself कि मैं यहाँ पे wrong जा रहा हूँ, and you know, I have to improve myself in this particular place. And in that I have reached to one point which I understand is कि मेरे something I had done wrong, you know, which has, जो मेरे संस्कार डेवलप हो गए हैं, वो संस्कार में मैं कहीं पे गलत हूँ, जिसके कारण मैं जो भी भुगत रहा हूँ, या फिर मुझे तप करने की भावना नहीं होती, या फिर जितनी तीव्रता से जो मॉडल है उनको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ माय नॉट हैविंग राइट संस्कार. That sanskar needs to be corrected, and sanskar is so deep inside, buried inside me, that to reach to that point I really have to concentrate a lot and work on that. So what is the option? तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट तो करना ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वो आपको ये छोड़ देना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सारी चीजें, तो वो ना करना पड़े, दैट इज व्हाई इट्स अ सेकंड बेस्ट थिंग. तो बेस्ट थिंग नहीं कर सकते तो सेकंड बेस्ट तो करनी चाहिए ना, ऐसा लोगों का कहना है. और एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ये जो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, और कोई भी धर्म वाले हैं, ये सब सारी एक संसार व्यवस्था है. मोक्ष मार्ग से हर एक व्यक्ति अलग अलग है. ये हमारा जो धर्म की हम जिसे धर्म कहते हैं, धर्म का मतलब, धर्म की डेफिनेशन शायद आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, पहले हमने बात की थी
कि वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव होता है उसी को धर्म बोलते हैं। धर्म कोई ऐसा नहीं, कहीं पे भी नहीं किया है कि आप जाके किसी मूर्ति के सामने एक नमस्कार करें। ये अच्छे संस्कार बोले गए हैं, ये उसका कुछ, ये हमारी शरीर रचना के आधार से, मनोरचना के आधार से कुछ न कुछ क्रियाएं बताई गई है जो वन हु हैज वेंट थ्रू दैम। और इस तरह से देखा जाएगा तो अगर कोई बोलेगा कि मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं, तो सभी लोग उसको ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्ट ना भी करें। जैसे जीसस क्राइस्ट थे, उसको तो सूली पे लटका दिया ना, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने भी चमत्कार तो बहुत सारे किए थे, या किसी को जिंदा किया था, गधे को, या किसी को, या फिर काफी सारी चीजें की थी, लेकिन उसको भी लटका दिया। तो लोग जो मानना चाहते हैं वही मानते हैं, उनका जो इंटेंशन जिससे सिद्ध होता है वही मानते हैं। लेकिन खैर, आई थिंक probably you are right, we will talk a lot more about that, and maybe in person too, you know. अभी तो नहीं हो सकता, I don't want you to talk in person, but you can continue to join these sessions, you know, and और सभी को। Dhiman ji, can I just add one point here? Just one point. हाँ बोलो। So, I think हम लोग, you know, बहुत सारे लोग Jainism से भी हैं, and everybody probably knows this, that one of the biggest pillars in Jainism is Anikantvad. And I think people literally don't understand what really Anikantvad is. People just know it, but to put that into a practice, अभी जैसे कि आपने मुसलमान का बताया, you know, Christianity की बताई, and everybody has their own path, is a very good example of Anikantvad, because जो जैसा है वो वैसा है. And the very fact that Jainism accepts these theories makes you on that path. Yeah, correct. Yeah, I agree with you. और you know, आप जो तब की बात कर रहे थे ना, तो ये हमारे नेमिश भाई है ना, कि आपकी तरह जो भी शास्त्र की जो टेक्निकल वर्ड्स आता है ना, तो he gets dizzy. Me too. टेक्निकल वर्ड मुझे तो कभी ऐसे लगा कि नमिश भाई ने अपना फोटो लगा के सिर्फ कैमरा के सामने लगाया है, and then he went on the bed. I'm just kidding, by the way. लेकिन इनकी समझ आप देखोगे तो उन्होंने क्या अभी बताया, उन्होंने आप आने से पहले उन्होंने बताया था कि मेरा जो मन कहता है, जो मेरी बुद्धि कहता है, उसको नहीं सुनना। उस समय का तो मैं उसका वो कहते हैं, उन्होंने अपना जो पुरुषार्थ में थे वो हमसे शेयर किया था। तो शास्त्र में आप चले जाओ तो तब की व्याख्या करते हैं। अच्छा, समय तत्व में चले, मैं आपको आखिर पूरी लिंक बता देता हूं तो आपसे उजागर हो जाएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये बिना शास्त्र के अभ्यास के इनकी समझ में कैसे फिट हो गया है। तो एग्जाम्पल के तौर से, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट, तो वो कहते हैं कि कर्म का जड़ना मतलब निर्जरा, वो करने लायक चीज है, मतलब उसको बोलेंगे उपादेय है। क्या है कि जिससे कर्म निकलते हैं वो उपादेय है। तो आगे बताता है कि निर्जरा किससे होती है, तो निर्जरा तप से होती है। ठीक है, तो तप किसको कहते हैं, इच्छा का विरोध को तप बोलते हैं, समझे, इच्छा निरोध तप, ऐसा सूत्र आता है। तो इन्होंने इस बात को पढ़े हुए नहीं जानते हुए भी बताया कि मैं अपनी मन की नहीं सुनता हूं, मैं अपनी बुद्धि की नहीं सुनता हूं, और इसी परिसाद में तो वो निर्जरा कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, वैसे निर्जरा कर रहे हैं उसको, मुझे उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। मैं कभी कभार, मुझे मालूम है कि आप में से कईयों को नहीं आता, फिर भी ये टेक्निकल वर्ड यूज करता हूं क्योंकि मुझे आप लोगों के अंदर कोई अगर ये बैरियर बना हुआ है उसको तोड़ना भी होता है ना, तो उसके लिए लगाता हूं।
उसके लिए इन शब्दों का मैं यूज करता हूं। तो आपको अगर उसको मालूम हो जाए कि ये मैं जो कर रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है, तो उसमें जो एक किस्म का, देखो कई बार हमें चीजों के लिए चीड़ इसलिए होती है कि हम उसको जानते भी नहीं है पूरा। आपने बताया ना कि मुसलमान के प्रति, क्रिश्चियन के प्रति किसी को चीड़ होती है क्योंकि वो इनको जानते भी नहीं है पूरा, ठीक है ना। ऐसे भी तो इस किस्म से कभी कभार ऐसा हो जाता है, और कहीं सुन लिया होता है, किसी ने बताया होता है कि ये शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तुम्हें टाइम लगेगा और तुम्हारी क्षमता नहीं है। उनको मालूम है, कई महापुरुषों को मालूम है कि ना तो इनकी क्षमता है, जॉब पे जाते हैं और शाम को आते हैं, उसका दिमाग खत्म हो गया होता है, दिमाग चलता नहीं है। तो उसको बिना शास्त्र के बात ये बता दो कि ये ऐसा है, तो वो करने लगेगा। वो खुद का तो जो अच्छी बात होगी वो सोच लेगा, दूसरों का शायद न कर पाए। तो उनको ऐसे कह देते हैं, कई लोग होते हैं बड़े पुरुष के, भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उनको मिल जाता है। लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि इनके प्रैक्टिकल जीवन में आ जाता है। और दूसरा, ऐसे भी शास्त्र वाले पढ़ने वाले लोग होते हैं, इसका रट्टा लगा देते हैं, इच्छा निरोधो क्या कहते हैं कि वो सूत्र है ना, सूत्र का रट्टा भी लगा लेते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। और उनको, हाँ बोलो, हाँ हाँ, तो उनको, उनके लिए भी ये बात होती है कि दोनों में से निकल के आप जो खुद के हित के लिए है उसके ऊपर फोकस करें। दैट्स व्हाट यू शुड से टू। या હિમન ભાઈ વોર્નિંગ આવી ગઈ હા તમને? So I will let other person speak now. कौन बाकी रह गया अभी? हाँ बोलो। ધીમનભાઈ, મારા જીવનમાં હું નાનપણથી ક્રોધ શબ્દ મારા છોકરાઓ પર કે મારા કોઈના પર થયો જ નથી, અને જીવનમાં દુઃખ શું છે એ મને કોઈ અડ્યું નથી. અને હવે મારી એક જ ઈચ્છા છે કે જો હવે મારે સારી ગતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો મારે શું કરવું, એની માટે મને હવે તમારા સત્સંગની બહુ જરૂર હતી, એટલે હું જોઈન કર્યું. બાકી જે મારો મોહની કર્મ હતો કે જેનાથી મને બહુ જ પરિગ્રહ થયો, એ પરિગ્રહ એ બી હવે નથી રહ્યો. હવે જે આ કોવિડ આવ્યું પછી એ બી હવે બંધ થઈ ગયું છે. નહીંતર ખૂબ પરિગ્રહ કર્યો, મોહ નથી, પરિગ્રહ કરી લીધો, મોહ નથી એના પર. પણ હવે મને સાચી વસ્તુ, સાચો ધર્મ શું ને સદગતિ માટે મારે શું કરવું એ જ એક જ વિચાર આવ્યા કરે. તમને ફાયદો થાય છે આ થોડા ઘણા? હા, તમે જોઈન્ટ થાવ છો થોડા હા, 3, 4, 5 વખતથી, તો તમને ફાયદો લાગે છે કઈ? હા, ઘણો બધો થયો છે મને. અને હું એટલું બધું ક્રિયાકાંડ નહોતી કરી શકતી. પૂજા કરવી, સામાયિક કરવું, આ કરવું, એ મારામાં નથી આવ્યું કઈ એવા ભાવ. હું નાનપણથી ઘણું કર્યું હતું, પણ મને સંગીત જ્યારે ગમવા માંડ્યું ત્યારે આ વસ્તુમાં મેં બહુ ધ્યાન નહીં રાખ્યું. અને મારું નેચરલી મને લાગણીથી અને મારા ભાવથી મને ઘણું બધું સારું બી લાગે છે. અને મને કોઈના પ્રત્યે ક્રોધ થતો જ નથી. ઘરમાં જોઈન્ટ फैमिली છે પણ મારેથી નથી થયો. हाँ, क्रोध नहीं होता है। ज्यादातर क्या होता है कि जो जैन बुद्धगर वाले को क्रोध नहीं होता है, उनको ज्यादा लोभ होता है। लोभ होना और क्रोध होना एक ही चीज है, अलग नहीं है। कषाय, हम सबको एक सामान्य से बोलेंगे कषाय, समझे कि और बात अच्छी है, क्रोध नहीं होने से आपकी एक स्थिरता आ जाती है। फिर क्रोध होता है तो वो उसका ज्यादा बहुत नुकसान अपने आप को कर लेता है, अपने ज्ञान तंत्रों का भी काफी नुकसान कर लेता है। क्रोध नहीं है, अच्छी बात है। तो मान माया लोभ, उन चीजों के ऊपर भी हम इतना फोकस करें, क्योंकि हमें किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। जो अच्छी चीज है उसके ऊपर उससे हमें कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, और जो कमियां है उसको दूर करने का उत्साह रखना चाहिए।
और आप इस जगह पे आ चुके हो तो आपको सम्यकत्व प्राप्त होगा ही होगा। आप सिर्फ जुड़े रहे मतलब कि दिल से जुड़े रहे। कभी कभार मैं जो कहता हूं उसको सिंसियरिटी से बात सुने आप, और कुछ पजल हुआ है तो पूछ भी सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पहले से डेवलप हो, इसलिए तो जैन धर्म में आपका जन्म हुआ है। वितराग मार्ग को समझते हो, वितराग मार्ग में समझने की क्षमता है, इसलिए उसी में आपका जन्म हुआ है। तो आप हम जहां से है उससे आगे कैसे जाए, यही हमें देखना होता है, समझे। आपको तो जन्म से प्राप्त है, मुझे जन्म से प्राप्त नहीं है। ये आपको तो मालूम है ना, यू नो दैट राइट। मेरा जन्म जैन कुल में नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन तो हमें तो बहुत ही मेहनत पड़ी है, और इसलिए हमें उसकी कीमत भी ज्यादा है। ज्यादातर जैनियों से हमें उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए हमें उसे खोएंगे नहीं। तो आपको जो सहजता से प्राप्त हो गया है उसको खोना नहीं। आपको याद रखना होगा जो सीता जी ने राम को क्या उपदेश भेजा था जब सीता जी का त्याग किया था। आपको मालूम है ना कि नहीं मालूम है? क्या है बताओ तो। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने जब धोबी के कहने से सीता का त्याग राम ने किया, लक्ष्मण जी उनको बाहर रख के आते, तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सीता जी को बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये इन लोगों को ऐसा है कि आपकी पवित्रता नहीं है, इसलिए एक राजा के हैसियत से उन्होंने आपका त्याग किया है। तो उनको दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर एक मैसेज भिजवाया लक्ष्मण जी के साथ। उन्होंने बताया, सीता जी ने बताया कि लोगों के कहने से आपने मेरा त्याग किया तो उसके लिए उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन सारी दुनिया आपके सामने हो जाए और आपको वितराग धर्म का त्याग करने को कहे तो आप वो नहीं करना, समझ रहे हो? तो इस तरह से आप अपने आप को बना लें। और हम ये आप लोगों के साथ इंडिविजुअल पहले बात करते थे, हम साथ भी इकट्ठे क्यों कर रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे से भी जुड़े रहे। ऐसा मैं नहीं हूं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ऐसा मिलते ही रहे। मुझसे आप जुड़े नहीं रहे, मुझसे मैं हूं तब ठीक है, कभी मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं न भी हो। तो ऐसा नहीं कि आपको आपका प्रोग्रेस रुकना चाहिए, आपका प्रोग्रेस तो चलता ही रहना चाहिए। ये सारा, और उसी तरह से आप चलते रहे। पहले भी हमने एक YouTube पे थोड़ी वीडियो डाली है हमने, आप सारी की सारी वीडियो को देख लें। 6 ढाला एक ग्रंथ का स्वाध्याय किया था, उसमें पहली ढाल थी संसार स्वरूप की बात हमने उसमें की है। 3-4 साल पहले शिविर की थे, हमारे घर पे ही थे, तो उसके सारे वीडियो डाले हैं। पहला वीडियो जब 3.5 घंटे का बताता है, लेकिन वो 30 मिनट का ही है। कुछ न कुछ हुआ है कि वो वीडियो ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, उसको आप जाके देख ले, आपके पास टाइम है तो उसको देख ले एक एक करके। और मैं कुसुम मामी को बताता हूँ कौन सा वीडियो कौन से सीक्वेंस में देखना है। तो कुसुम मामी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, तो आगे कैसे करना है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, आपको कमेंट करें, शेयर करें। शेयर भी बहुत करता हूँ, तो इसलिए मुझे बोलना अच्छा लगता है कि you have to subscribe, share। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे, ऐसे आप करना। तो अभी आज के लिए कुसुम मामी, आज के लिए सम्यक दर्शन के बारे में आपको क्या समझ है, अगर आप वो उसके बारे में बताएं तो उस टॉपिक में बाद में उषा बहन को भी पूछेंगे। सम्यकમાં એવું થયું છે કે જે તમે કહ્યું હતું એમ મૌની કર્મ એ અને દર્શનની એ બધા જે આવરણો છે આપણા પર આવેલા છે
એટલે સમ્યક્ત્વ થતું નથી આપણને. તો એ દૂર કરવા માટે આપણે એના જ પ્રયત્ન કરવાના છે, જેનેથી આપણેથી દૂર થઈ જાય. અને ક્રોધના બીજ પણ ન નખાય એ પહેલા ધ્યાન રાખવાનું. એમાંથી જ વૃક્ષ થઈ જાય છે, તો એને બી કંટ્રોલ કરવાનું છે હવે મારી લાઈફમાં. અને તમે દ્રવ્ય કર્મ કહ્યું, 2 અવસ્થામાં હોય છે, એક સત્તામાં હોય અને એક ઉદયમાં આવી જાય છે. તો હવે જે સત્તામાં જ આવ્યું છે, તો એને કેવી રીતે કર્મ ભાવથી આપણે એને કરી શકીએ અને આપણે સારી રીતે બીજાનું બી વિચારીને આપણું જીવન સારી રીતે પસાર કરી શકીએ. એટલે સમ્યક્ત્વ માટે તો મને આગલા નેક્સ્ટ ભાવમાં જે બધા આ નારકી દેવલોક આ જે બધાના હું દુઃખ જ્યારે સાંભળું છું, ત્યારે મને એમ થાય છે કે એ ન થાય એની માટે થોડો પ્રયત્ન કરવો છે મારે. બાકી તો જે કર્મ બાંધ્યા છે એ તો ભોગવવાના ગમે ત્યારે ત્યાં હોય જ છે. પણ થોડું બી જ્ઞાન થઈ જાય તો સમ્યક્ત્વનું તો ઓછા, જેમ ધીમંતભાઈ કહેતા હતા કે ઓછું થાય આપણા માટે, તો એ મારે કરવું છે હવે. બસ બીજું સમ્યક્ત્વ ઈ જ છે મારું. તો આપણે છે ને ધીમંતભાઈને એમ કહીએ કે આ તમારી જે રેકોર્ડિંગ છે, હમણાં આજે રેકોર્ડિંગ થઈ છે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ધીમંતભાઈ તમને એની બાબત કોમેન્ટ કરીને કે આજે આપણે ધીમંતભાઈને થોડો આરામ કરવાનું કહીએ. અને જે કંઈ તમે બોલ્યા છો એની બાબત નેક્સ્ટ ટાઈમમાં જરૂરથી આગળ તમને એની બાબત કહેશે. બરાબર ને? રાજેશભાઈ શું મારા ઘરેથી મેસેજ આવી ગયો તમને? મને એવું લાગ્યું કે તમારે થોડો આરામ કરવો જોઈએ અને આજે વધારે બોલવાનું થઈ ગયું છે. બરાબર. એટલે એમ સમજીને હવે આપણે ઉષાબેન શું કહે છે આપણે સમજી લઈએ. સમ્યક દર્શન જે કંઈ સમજ હોય, બહુ આગળ વધેલા છે, તો જે છે એ તમે કહો સમ્યક દર્શન બાબત. સમ્યક દર્શન એટલે કે સમતા, મેઇન પેલા સમતા રાખવાની જરૂર છે. ક્ષમતા હોય તો બધું તમારથી આગળ તમે પ્રયત્ન કરો તો આગળ વધી શકો. મેઇન એમાં ક્રોધ તો મેઇન બીજ છે, ક્રોધ હોવો ન જોઈએ. અને તો પછી આગળ તમને સમ્યક્ત્વ મળી શકે. અને એની તમારે જ્ઞાનની જાણ હોવી જોઈએ. મેઇન એ ધીમંતભાઈ સમજાવે છે તો એ સમજવાનું. બરાબર. તો તમે આજે જે બોલ્યા એનું આવતા વખતે તમને ધીમંતભાઈ કહે છે. બરાબર ને?